Yo, welcome to Physics with Vinay. Hi, I'm Vinay and I'm back. And I'm back with the second lecture in this one-shot series for JEE Mains 2025. आज के lecture में we're going to cover kinematics का second part, which is relative motion, calculus, and graph-based problems. And at the end of the lecture, we will be done with kinematics. So I hope you're as excited as I am. Please do keep sharing these videos that I'm putting up for JEE Mains 2025 क्योंकि जितने ज़्यादा views आएंगे उतना ज़्यादा मुझे motivation रहेगा to keep continuing this series for you guys. So in this particular lecture, we are going to finish kinematics and PYQs भी करेंगे, theory भी करेंगे, PYQs from the last few years as well as 2020, 2019 वाले PYQs because कोई लोग बोल रहे हैं कि शायद इस बार JEE Mains का level थोड़ा ज़्यादा होने वाला है. You never know. I'm going to make you prepared for every possible scenario. So I hope you're as excited as I am to start this lecture. Let's go. Let's talk about relative motion. So अगर मेरे पास एक पार्टिकल A है, एक पार्टिकल B है, ठीक है, उसका कुछ velocity VA वेक्टर ऐसा है, velocity VB वेक्टर कुछ ऐसे है. These velocities are in the ground frame. ठीक है, so velocity of A with respect to B is given by velocity of A vector minus velocity of B vector. So this is velocity of A relative to B, मतलब velocity of A as observed by B. इसको अपन relative velocity बोलते हैं. Similarly, acceleration का भी यही formula है, acceleration of A minus acceleration of B. So as observed by B, the motion of A is going to be given by this velocity and this acceleration. And similarly, displacement के लिए भी लिख सकते हो. Displacement of A with respect to B is displacement of A minus displacement of B. ठीक है. So let's look at a type of question that can come on this basic concept of relative motion. Let's look at a question that came in JEE 2023. A passenger in train A moving at 90 kph observes another train B moving in the opposite direction for 8 seconds. So मेरे पास यहाँ पे passenger है in train A. ट्रेन ए मूव कर रहा है कितने स्पीड से 90 kph. अब ये जो स्पीड दिया हुआ जब when they give you only velocity speed without telling you who is the frame of reference मतलब who is the observer, it is the ground frame मतलब there is some imaginary observer standing on the ground and observing the train moving at 90 kph. ठीक है, okay. Now बोला है B moves in the opposite direction and observes another train B moving in the opposite direction for 8 seconds. So ये observe करता है कि वो 8 seconds लगता है to move. मतलब this observer is observing कि this train B takes 8 seconds to completely pass the passenger. ठीक है, this passenger is observing. अब ground frame में इसका speed कितना है 54 kph. ठीक है. So can I say velocity of A, if I take right hand side as positive x-axis, so velocity of A is 90 I cap, velocity of B is minus 54 I cap. So velocity of B with respect to A, कितना हो जाएगा? मैं B with respect to A कर रहा हूँ because I want A to be the observer. So minus 54 minus 90, correct? तो ये हो जाएगा minus 144 I cap, right? And ये this is kilometers per hour. ठीक है, वो ध्यान रखना, यूनिट्स का ध्यान रखना है अपने को. एंड ऑब्जर्वर ए क्या ऑब्जर्व करता है कि ऑब्जर्वर ए के खुद के फ्रेम में खुद तो रेस्ट पर है, राइट? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए इज जीरो बिकॉज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ए इज जीरो. तो ऑब्जर्वर ए इज स्टैंडिंग इन द पैसेंजर सिटिंग इन द ट्रेन एंड ही इज ऑब्जर्विंग बी कमिंग दिस वे एंड गोइंग. सो हाउ मच टाइम डज ही ऑब्जर्व बी टू बी क्रॉसिंग हिम? 8 seconds. मतलब कितना टोटल लेंथ हुआ रहेगा? जस्ट इमेजिन कि तुम ए हो तो B, you will start seeing B when it starts to cross, and then ultimately the front end of the B will first cross passenger in train A, and then the rear end will cross, right? Okay, तो कितना टाइम लगा इस B को? 8 seconds. उसका वेलोसिटी कितना है? अब we are in the frame of A, तो A के फ्रेम में इसका वेलोसिटी कितना? 144. So distance traveled by B with respect to A, वो कितना हो जाएगा? The distance traveled by B with respect to A would be 144 kilometers per hour. Let me convert it into meters. Kilometers per hour को हम meters में कैसे convert करेंगे? 5/18 multiply करके, right? Into 8 seconds. तो ये बन जाएगा 18 8 and
this will become 4320 meters. Right? So what is this? This is the displacement of B with respect to A. तो A के फ्रेम में A स्टेशनरी है, एंड ये जो मेरा मार्कर है उसको ट्रेन इमेजिन करो, उसका फ्रंट एंड यहाँ पर है, एंड फाइनली उसका रेयर एंड यहाँ पर है. तो जो फ्रंट एंड जितना डिस्प्लेस हुआ वही पूरा लेंथ हो गया, तो यही मेरा लेंथ ऑफ द ट्रेन है. ठीक है. सो यूजिंग रिलेटिव मोशन वी वर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अच्छी तरह से समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं. रिलेटिव मोशन इज वेरी यूजफुल इन सर्टन सिचुएशंस जहां पे दो बॉडीज फ्री फॉल में है. सो इफ यू हैव, मैं एग्जांपल से बताता हूं कि लेट्स से दिस इज थ्रोन एट 30 मीटर पर सेकेंड एंड लेट्स से दिस इज थ्रोन एट 20 मीटर पर सेकेंड, एंड इन दोनों के बीच में 100 मीटर्स है. तो बोथ आर obviously in free fall, they both have acceleration due to gravity g downwards. But question पूछा time to collide. तो कैसे करेंगे? Relative motion gives us a very simple solution कि suppose ये A है, ये B है, कोई भी एक के फ्रेम में जाओ, ये ग्राउंड फ्रेम में दिया हुआ है, कोई भी एक के फ्रेम में जाओ. Let me take upward as positive y axis. So velocity of A पहले तो ग्राउंड फ्रेम में लिख लेते हैं, it is minus 30 j cap. Velocity of B is 20 j cap. So velocity of B with respect to A, you can do it the other way also, doesn't matter. I'm going in the frame of A. तो A के फ्रेम में A खुद स्टेशनरी, एंड B का वेलोसिटी कितना होगा? Velocity of B minus velocity of A. तो कितना बन जाएगा? 50 j cap. तो A को क्या लग रहा है? A खुद स्टेशनरी है, पर A को लग रहा है कि B is coming up with 50 मीटर पर सेकेंड. What about the acceleration? Acceleration कितना होगा? अब acceleration of A is minus g j cap. Acceleration of B is also minus g j cap, right? Velocity कोई भी डायरेक्शन में होने दो, acceleration in free fall is determined by gravity, which is always downwards. दोनों का acceleration is minus g j cap. तो relative acceleration कितना? Acceleration of B with respect to A becomes 0, and then it's very straightforward because acceleration 0 है, तो ये uniform motion है. Uniform motion मतलब constant velocity, and therefore I can just write time taken is 100 meters. 100 meters is the displacement of B with respect to A. सोचो, because A तो स्टेशनरी है and B नीचे 100 meters पर है, तो A को क्या लगेगा? B को कितना ट्रैवल करना पड़ेगा in order to collide? 100 meters. So A के रेस्पेक्ट में B has to travel 100 meters. So 100 meter मेरा डिस्प्लेसमेंट है और कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है. A के फ्रेम में कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है 50 मीटर पर सेकंड, 2 seconds. We didn't have to involve acceleration at all. That is the powerful nature of relative motion, especially when you have two objects in free fall. ठीक है, देख लो. Let's look at a question from JEE 2022. एक 2-dimensional question देखते हैं relative motion में. तो question का language क्या है? A jet is flying horizontally at a speed of 200 meter per second. तो ये मेरा jet है, it's flying horizontally at 200 meter per second. ठीक है. A bullet is fired with speed 400 meter per second at angle theta to the horizontal. When the jet flies overhead the anti-aircraft gun. So anti-aircraft gun के just directly overhead है. Directly बोलता हूँ यहाँ पे. So when this directly overhead this anti-aircraft gun, ये gun है, वहाँ से एक bullet fire करता है. ठीक है. So but it's fired at some angle theta and at 400 meter per second. So find the angle theta to hit the jet. So ground frame में कैसा motion होगा? Jet is flying this way and bullet is performing some projectile motion and hits the jet. ठीक है? But if we go in the frame of the jet, then this question becomes very easy. अगर मैं frame of the jet देखूं, तो jet के frame में jet stationary हो गया, correct? तो jet के frame में jet stationary हो गया. अगर jet stationary है, तो कौन से direction में bullet का velocity होना चाहिए to hit? Vertical. So bullet का velocity with respect to jet must be vertical, तो ही जाके hit करेगा. इसका मतलब velocity of bullet with respect to jet का horizontal component must be 0, right? If the velocity is along the vertical, then there is no horizontal component. So velocity ये किसके फ्रेम में कर रहे हैं? Jet के फ्रेम में. So jet के फ्रेम में bullet का velocity का horizontal component must be 0. बस फिर लिख लो. Velocity of bullet का x component minus velocity of jet का x component must be 0. That is the formula. Vb minus Vj. So velocity of bullet का x component should be velocity of jet का x component. अब jet का x component ही है, y तो है ही नहीं. And bullet का x component कितना लिख सकता हूँ? 400 cos theta. So 400 cos theta should be equal to 200. So cos theta is half, theta is 60 degree. Alright, so simple question.
बट क्वेश्चन पढ़ के जनरली स्टूडेंट्स थोड़े डर जाते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में रिलेटिव मोशन आ गया, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बेसिक से फंडामेंटल से करो तो हो जाएगा। देख लो, लेट्स टॉक अबाउट ड्रॉपिंग एन ऑब्जेक्ट। सो हमने देखा है ड्रॉप मतलब क्या, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, बट नाउ दैट वी नो रिलेटिव मोशन वी हैव टू टॉक अबाउट रिलेटिव टू व्हाट। सो इट टर्न्स आउट ड्रॉपिंग मतलब जो पर्सन ड्रॉप कर रहा है ऑब्जेक्ट उसके रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। सो व्हाट डज दैट मीन कि सपोज मेरे पास एक प्लेन है, ठीक है, एंड इट ड्रॉप्स अ बॉम्ब। सपोज दिस इज गोइंग विद सम स्पीड u, तो velocity of bomb with respect to the plane initial just after dropping will be zero. That is what dropping means. किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड फ्रेम में नहीं, with respect to the plane, ठीक है। So that means velocity of bomb should be equal to velocity of plane initially, right? तो ही उनका relative velocity zero होगा। So basically what it means is कि ground frame में, these are the velocities in ground frame, the ground frame velocity of the bomb is the same as the velocity of the plane at the instant the bomb was dropped, ठीक है। So इसका मतलब bomb का भी velocity ground frame में u होगा। Now as soon as it is released from the plane, the only force acting on it is gravity. We neglect air resistance, so only force acting on it is gravity. और gravity के केस में, gravity के influence में क्या मोशन करेगा, projectile. So it's going to perform projectile motion. तो ये मेरा height अगर h है, ये जो range होगा that will be, alright, so this will be my range of the projectile. So the bomb when it is dropped, it is not going to perform vertical motion, it is going to perform a horizontal projectile motion, ठीक है। देख लो, let's talk about rain person problems. तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स में क्या होता है, they give you a person walking with some speed and they ask you कि कितने एंगल पे the person will observe the rain falling and उस एंगल पे the umbrella will have to be held. So मैं एक एग्जांपल के थ्रू ही बताता हूँ। A person, let's say, is walking with speed, let's say 2 meters per second, ठीक है, and let's say the rain is falling at 3 meters per second vertically, okay. तो पूछा गया कि कितने एंगल पे the person has to hold the umbrella so that they don't get wet. तो what the only basic thing that you have to do is calculate the velocity of the rain with respect to the person. This is all you have to do. तो यहाँ पर let me take x axis this way and let me take y axis this way. तो velocity of rain with respect to person is velocity of rain minus velocity of person. Velocity of rain कितना होगा, -3j cap, करेक्ट, डाउनवर्ड है। velocity of person कितना, 2y cap, तो ये बन गया मेरे पास -2y cap plus 3j cap. now इसको ग्राफ में प्लॉट करो, कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, x और y कंपोनेंट दोनों नेगेटिव है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, एंड x कंपोनेंट 2 है, y कंपोनेंट 3 है, तो ऐसे कुछ आ जाएगा। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। तो जनरली एंगल विद द वर्टिकल पूछा जाता है, तो एंगल विद द वर्टिकल मतलब tan थीटा वुड बी x कंपोनेंट डिवाइड बाय y कंपोनेंट, सो 2y3, राइट। सो द पर्सन हैज टू होल्ड द अम्ब्रेला दिस वे, he has to hold the umbrella, he or she has to hold the umbrella along the direction of tan inverse of 2/3 to the vertical, because person को जो दिख रहा रेन जिस डायरेक्शन में फॉल कर रहा है उस डायरेक्शन में the person has to hold the umbrella, okay. ये भी हो सकता है कि रेन हैज सम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ऐसा नहीं कि रेन ओनली हैज टू फॉल वर्टिकली, बिकॉज विंड के कारण रेन ऑल्सो कैन हैव सम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। कुछ नहीं, बस जो भी वेलोसिटी दिया गया है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, गेट द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, ड्रॉ द वेक्टर, गेट द एंगल, ठीक है। समटाइम्स क्वेश्चन में ऐसा भी दिया जाता है कि रेन फॉल्स एट 3 meters per second इन एब्सेंस ऑफ विंड, बट देन द विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग एट लेट्स से 2 meters per second, ऐसा भी क्वेश्चन दे सकते हैं, वेरिएशन बता रहा हूं मैं। सो विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग एट 2 meters per second, तो अब रेन का वेलोसिटी क्या होगा, द रेन का वेलोसिटी, लेट मी जस्ट गिव यू 3 meters per second, चलो। सो रेन का वेलोसिटी अभी क्या होगा, द विंड का जो वेलोसिटी है वो रेन को ऐड हो जाता है, ये अपने को ऐसा फैक्ट याद रखना है कि जब विंड नहीं है तब रेन वर्टिकल फॉल कर रहा है, इन दिस एग्जांपल 3 meters per second, बट अब विंड इज ट्राइंग टू ब्लो द रेन along with itself with how much speed, 3 meters per second. So now I can write velocity of rain in the ground frame would be 3 से, तो वो गिर रहा है बट 3 से अभी वो विंड के साथ आगे भी जा रहा है,
क्वेश्चन में दिया जाएगा विंड कौन से डायरेक्शन में है. इफ द पर्सन इज वॉकिंग टू द राइट तो विंड कैन बी टू द लेफ्ट और टू द राइट. ठीक है, तो इस केस में मैंने राइट में दिया तो 3 आ जाएगा. नाउ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन कितना हो जाएगा? -3 j कैप प्लस 3 i कैप माइनस द वेलोसिटी ऑफ पर्सन विच इज कहाँ गया? 2 i कैप. तो अब बन जाएगा i कैप माइनस 3 j कैप. तो x कंपोनेंट पॉजिटिव है, y कंपोनेंट नेगेटिव है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन ऐसे आ जाएगा. एंड दिस एंगल थीटा वुड बी x component by y component 1/3. So the person now will have to hold the umbrella behind them because person is walking to the right. So person will hold the umbrella जिस डायरेक्शन में रेन गिर रहा है उस डायरेक्शन में अकॉर्डिंग इन द फ्रेम ऑफ द पर्सन. सो पर्सन राइट में चल रहा है टू योर राइट एंड रेन ऐसे गिर रहा है विद रिस्पेक्ट टू पर्सन. करेक्ट. सो देयरफॉर पर्सन विल हैव टू होल्ड द अम्ब्रेला बिहाइंड देम. ओके. सो इस तरीके से हर रेन मैन प्रॉब्लम, हर रेन पर्सन प्रॉब्लम रादर एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, जस्ट फॉलो द स्टेप्स. देखिए, let's do a question that came in JEE 2022. अच्छा क्वेश्चन है. A girl standing holds umbrella at 45 degrees to the vertical to keep rain away. So डायग्राम ड्रॉ करो. गर्ल इज स्टैंडिंग, मतलब वेलोसिटी ऑफ द गर्ल पर्सन बोलता हूँ इज 0, राइट, ग्राउंड फ्रेम में, एंड द रेन इज फॉलिंग एट 45 डिग्रीज टू द वर्टिकल. सो रेन का वेलोसिटी 45 डिग्री है व्हेन द पर्सन इज स्टेशनरी. ठीक है. Now if she runs with a speed 15√2, so let me just write it this way. Velocity of rain is some Vx I cap plus Vy j cap. अब मुझे पता नहीं 45 डिग्री ऐसे गिर रहा है कि ऐसे गिर रहा है, वो पता नहीं है. देखते हैं और आगे क्या बोला गया. ठीक है. वेलोसिटी ऑफ रेन को मैं Vx I cap plus Vy j cap बोल रहा हूँ. Vy ऑफ कोर्स नेगेटिव होगा. ठीक है. आई हैव टेकन x एक्सिस दिस वे एंड y एक्सिस दिस वे. फिर क्या बोला? इफ शी रन्स विद स्पीड 15√2 kph शी ऑब्जर्व्स रेन हिटिंग हर हेड वर्टिकली. सो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द गर्ल, अब जो वेलोसिटी ऑफ गर्ल है वो 15√2 i कैप है, तब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द गर्ल इज वर्टिकल. इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? 0. सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द गर्ल विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 0. सो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन का x कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पर्सन का x कंपोनेंट विच इज 15√2. सो वेलोसिटी ऑफ रेन का जो x कंपोनेंट है वो 15√2 आ गया. राइट. तो अब मुझे पता चल गया कि रेन इज फॉलिंग दिस वे, मतलब पर्सन विल बी गोइंग टू द राइट एंड रेन का डायरेक्शन ऐसा है बिकॉज उसका x कंपोनेंट हैज टू बी इन द सेम डायरेक्शन एज पर्सन का x कंपोनेंट. दे आर इक्वल. करेक्ट. पॉजिटिव है, पॉजिटिव 15√2. सो अब मुझे चाहिए क्या? व्हाट डू आई वांट? फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग गर्ल. सो बेसिकली सबसे पहले तो मैं रेन का वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ. रेन का वेलोसिटी ड्रॉ कर रहा हूँ. 15√2 ऐसे है एंड Vy ऐसे है एंड द एंगल दैट इट इज मेकिंग इज सेट टू बी 45 डिग्री. राइट. सो रिमेंबर वेलोसिटी ऑफ रेन इन द ग्राउंड फ्रेम विल नॉट चेंज वेदर द पर्सन इज स्टेशनरी और रनिंग. रेन को थोड़ी फर्क पड़ता है पर्सन क्या कर रहा है ना. सो ग्राउंड फ्रेम में ये वेलोसिटी ड्रॉप किया, वेलोसिटी ऑफ रेन. अब ये 45 डिग्री मतलब दोनों इक्वल होना चाहिए बिकॉज tan 45 इज 1. सो वेलोसिटी ऑफ रेन का y कंपोनेंट इज आल्सो 15√2. सो देयरफॉर वैसा नेगेटिव आएगा बिकॉज डाउनवर्ड है. सो अब मुझे चाहिए स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग गर्ल. सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन वुड बी वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन एंड x कंपोनेंट तो 0 है तो बचा सिर्फ y कंपोनेंट. सो दिस विल सिंपली बिकम y कंपोनेंट माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन का y कंपोनेंट. अब ये तो 0 है, पर्सन का y कंपोनेंट तो कुछ है नहीं, तो बेसिकली व्हाट दे आर आस्किंग इज ओनली रेन का y कंपोनेंट व्हिच इज 15√2. स्पीड पूछा है मतलब मैग्नीट्यूड. सो माय आंसर वुड बी 15√2 kph. ठीक है. सो इट्स अ गुड क्वेश्चन. 2 इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, 2 बार अपने को ये चीज करना है. अच्छी तरह से समझ लो. देखो, लेट्स कम टू रिवर बोट प्रॉब्लम्स या रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स. सो ये टाइप के प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि दे गिव यू अ रिवर व्हिच इज फ्लोइंग. ठीक है. तो ये टॉप व्यू है. दीज आर द बैंक्स ऑफ द रिवर एंड ये मेरा रिवर है. ऊपर से अपन देख रहे हैं ये रिवर फ्लो कर रहा है एंड अ बोट या पर्सन इज ट्राइंग टू स्विम इन सम डायरेक्शन. सो ऐसा दिया जाता है वेलोसिटी स्पीड ऑफ द बोट या पर्सन इन स्टिल वाटर इज सम वेलोसिटी इज सम v रिलेटिव. ऐसा दिया जाता है.
तो what this means is speed of the boat or person is still what? Still मतलब stationary water. Stationary water मतलब क्या? कि they are talking about the velocity with respect to the river. Water stationary कब होगा? रिवर के फ्रेम में ही होगा ना. So रिवर के फ्रेम में अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया 5 मीटर पर सेकेंड, so what does this mean? It means they have given us the speed of the boat or the person with respect to the river. This is what this sentence means. Okay, so I'm going to label this velocity in general as velocity of boat with respect to river. Okay, boat या person. Alright. Now velocity of river VR दिया गया. तो मुझे क्या चाहिए, इसमें दो चीज़ें जनरली इंपॉर्टेंट होते हैं टू कैलकुलेट कि कितना टाइम लगेगा पर्सन को या बोट को टू क्रॉस द रिवर एंड कितना दूर वो पहुंचेगा. ओके, सो लेट्स से कि द पर्सन इज ट्राइंग टू स्विम या द बोट इज ट्राइंग टू रो एट सम एंगल थीटा. सो बोट इज ट्राइंग टू गो एट सम एंगल थीटा. अगर रिवर फ्लो नहीं कर रहा होता तो वैसे चला जाता, बट बिकॉज द रिवर इज ऑल्सो फ्लोइंग, रिवर विल कैरी द बोट फॉरवर्ड, सो वो कुछ और एंगल पे यहाँ पे पहुंच जाएगा. ठीक है, सो दैट इज व्हाट आई वांट टू फाइंड आउट. सो लेट्स से दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस, एंड लेट्स से विड्थ ऑफ द रिवर इज d, डिस्टेंस बिटवीन द बैंक्स इज d. तो सबसे पहले तो कहना राइट वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर. ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ बोट वुड बी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर. अब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर I would like to write it in terms of I cap J cap. It will make things easy. तो I cap कंपोनेंट कितना होगा? VBR cos थीटा प्लस J cap कंपोनेंट VBR sin थीटा J cap, और रिवर का पूरा ही I cap के अलॉन्ग है. सो वेलोसिटी ऑफ बोट पूरा वेक्टर फॉर्म में मेरे पास आ गया. आई एम गैदरिंग ऑल द I cap टर्म्स हियर प्लस J cap टर्म हियर. ठीक है, तो ये मेरा वेलोसिटी ऑफ बोट हो गया. नाउ द एंटायर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बिकॉज नाउ इट इज वेरी बेसिक काइनेमैटिक्स. फर्स्ट थिंग आई वांट टू फाइंड आउट कि कितना टाइम लगेगा टू रीच द बैंक. सो जो भी इसका डिस्प्लेसमेंट होता है उसका y कंपोनेंट कितना होगा? d. जो भी वेक्टर है उसका y कंपोनेंट तो d होगा. सो डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट इज d एंड वेलोसिटी ऑफ बोट का y कंपोनेंट कितना है? ये. So therefore time कितना है? Displacement by velocity d by VBR sin theta. VBR is what is given to you in the question. D is also given, theta is also given. What is theta? Theta is the angle at which the boat is trying to go or the swimmer is trying to swim. ठीक है, with respect to the river. Trying because real ground frame में इन दोनों का रिजल्टेंट VBR and VR का रिजल्टेंट के अलॉन्ग एक्चुअली जाएगा बोट या स्विमर. तो टाइम आ गया. अच्छा, now like I said, the boat will end up somewhere here. So this is called drift. This entire displacement, this is my displacement, उसका x component is called the drift. वो कितना हो जाएगा? velocity of boat का x component into time. टाइम निकल गया, velocity of boat का x component पता है मुझे. तो ये बन जाएगा VBR cos theta plus VR into d by. ठीक है, दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम. तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है बिकॉज यू कैन जस्ट कैलकुलेट द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम. ये कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं बिकॉज यू कैन जस्ट डू दी स्टेप्स ऑन योर ओन. ओके, तो ये फॉर्मूला से मेरे पास ड्रिफ्ट मिल जाएगा. ओके, ऑलराइट. नाउ वन कंडीशन दैट इज समटाइम्स आस्क्ड इज व्हाट इज द कंडीशन फॉर जीरो ड्रिफ्ट. जीरो ड्रिफ्ट मतलब द पर्सन हैज टू गो हियर, एग्जैक्टली हियर. सो जीरो ड्रिफ्ट के लिए, फॉर जीरो ड्रिफ्ट डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट जीरो होना चाहिए, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट का x कंपोनेंट जीरो होना चाहिए. मतलब दिस शुड बी जीरो, मतलब cos थीटा शुड बी माइनस VR बाय VBR. ओके, नेगेटिव साइन ऑफ cos थीटा मतलब एंगल इज ऑब्ट्यूज, व्हिच मेक्स सेंस बिकॉज द बोट शुड बी ट्राइंग टू गो दिस वे, द रिवर विल ट्राई टू कैरी इट दिस वे, अल्टीमेटली इट विल एंड अप स्ट्रेट परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो. सो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय जीरो ड्रिफ्ट. ठीक है. अच्छा, ये जो टाइम है, कभी कभार ऐसा पूछते हैं व्हाट इज द एंगल फॉर शॉर्टेस्ट टाइम. शॉर्टेस्ट टाइम में द पर्सन हैज टू क्रॉस द रिवर, कितना एंगल पे he or she should try to swim. शॉर्टेस्ट टाइम मतलब मैक्सिमम डिनोमिनेटर, मैक्सिमम साइन थीटा, मतलब थीटा 90 डिग्री. सो द पर्सन शुड ट्राई टू स्विम along the 90 degree mark.
so as to reach in the shortest time. But that does not mean shortest path. Zero drift is shortest path. Correct? This is velocity of boat. But shortest time के velocity of boat with respect to river should be along the y-axis. So shortest time में क्या होने वाला है? Velocity of boat with respect to river perpendicular होगा to the river. But resultant ऐसे कुछ होगा. So shortest path does not mean shortest time. वो एक misconception होता है. So that you should remember. Shortest path मतलब zero drift. Shortest time मतलब the relative velocity is at 90 degree. Okay? देख लो. अब जो ये जीरो ड्रिफ्ट का कंडीशन निकाला हमने, उसमें एक कंडीशन है, बिकॉज जीरो ड्रिफ्ट के लिए हमने क्या निकाला कि cos थीटा शुड बी माइनस वी आर बाय वी बी आर, राइट? सो थीटा इज दिस ऑब्ट्यूस एंगल. ओके, तो यहां पर दिस इज वैलिड ओनली इफ वी आर इज लेसर देन वी बी आर, बिकॉज cos थीटा का मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी मोर देन 1, राइट? सो in the situation if VR is greater than VBR, that means zero drift is not possible because there is no solution for theta which will satisfy this. So in that case, the best we can do is only minimize the drift. So in this situation, we can only at best minimize. तो for minimum drift, जो हमने drift का formula निकाला था, उसको तुमको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. मिनिमम कैलकुलस जीरो सेट करो डेरिवेटिव को, तो उसका मैं रिजल्ट डायरेक्टली लिखता हूं. इसका रेसिप्रोकल आ जाता है cos थीटा माइनस वी बी आर बाई वी आर. तो इस केस में जीरो ड्रिफ्ट नहीं होगा, बट कुछ तो मिनिमम पॉसिबल ड्रिफ्ट होगा. ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे. ऑलराइट, देखो लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2023. स्पीड ऑफ अ स्विमर इज 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर. इसका मतलब क्या? It is the speed of the swimmer with respect to the river. If the swimmer makes his strokes normal to the flow of river. अब ये सेंटेंस देखो, if the swimmer makes his strokes normal to the flow of the river, मतलब वो किसके बारे में बोल रहे हैं? Relative velocity के. मतलब the swimmer is trying to swim normal to the flow of the river of width 1 kilometer. तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं. ये width 1 किलोमीटर है, ठीक है, 1000 मीटर लिख लेता हूँ. And the swimmer is trying to flow normally. मतलब velocity of the swimmer with respect to river is this way, ठीक है, relative speed, and river is flowing this way. तो क्या होता है? He reaches a point 750 meters downstream. Downstream मतलब river के along. तो river के velocity के along 750 meters on the opposite bank. मतलब वो कुछ ऐसे जाता है, and ये 750 meters पे पहुंच जाता है. मतलब this will be the resultant, correct? ये जो velocity है, velocity of the swimmer would be velocity of swimmer with respect to river plus velocity of river. इन दोनों का रिजल्टेंट ये velocity of swimmer. उसी के along ट्रैवल करके यहाँ पे पहुंच गया opposite bank पे, वो 750 meters. ओके, सो पूछा गया what is the river flow. Now this I can actually do it directly by थोड़ा सा trigonometry, कि अगर ये मैं एंगल थीटा बोलूँ, ठीक है, तो मैं tan थीटा को लिख सकता हूँ v the relative speed VSR divided by VR. Correct? VSR divided by VR, because VS is the velocity of the swimmer in the ground frame and theta is the angle that it is making. तो y component में x component, and ये दिया हुआ है मेरे पास 4 kph, and ये unknown है. But tan theta, this is theta, तो this is also theta. तो ये 750, ये 1000 है, तो tan theta को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1000 by 750 भी लिख सकता हूँ, right? Which is nothing but 4 by 3. So VR का वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर. ये मेरा आंसर होगा. ठीक है, तो दिस इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. यू कैन ऑल्सो डू इट बाय कैलकुलेटिंग टाइम फर्स्ट, वो भी कर सकते हो. दूसरा ऑल्टरनेट मेथड इज कि तुम टाइम पहले कैलकुलेट करो, विच इज द विड्थ डिवाइडेड बाय y कंपोनेंट ऑफ द स्विमर का वेलोसिटी, विच इज नथिंग बट दिस 4. ठीक है, 1000 meters divided by 4 kph, and then the drift 750 is equal to x component of velocity of the swimmer, which is nothing but the river velocity, which is unknown, into the time. तो यहाँ से भी तुमको VR का वैल्यू 3 आ जाएगा. Okay, but do whatever you're comfortable with. देख लो. Let's look at a question that came in JEE 2019. A river is flowing with speed 2 kilometers per hour. Swimmer can swim at 4 kilometers per hour in still water. तो again ये मेरा relative speed हो गया. Find the angle of swimming with respect to the river flow to cross the river normally to the flow. मतलब क्या?
कि जो रिवर है दैट इज फ्लोइंग एट 2 किलोमीटर्स पर आवर, बट जो स्विमर है उसको परपेंडिकुलरली क्रॉस करना है, सो ही हैज टू स्विम, दे हैव टू स्विम एट दिस सम एंगल, दिस इज माय 4 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। तो रिजल्टेंट शुड बी नॉर्मल, तो जाके वो नॉर्मली क्रॉस करेगा। बेसिकली जीरो ड्रिफ्ट वाला केस है, दे आर आस्किंग जीरो ड्रिफ्ट, एंड जीरो ड्रिफ्ट का कंडीशन क्या था कि cos थीटा, दिस इज थीटा, should be minus velocity of boat with respect to river divided by velocity of उल्टा, velocity of river divided by velocity of boat with respect to river। boat मतलब यहाँ पे swimmer, ठीक है। तो हो गया -2/4 एंड दैट इज -12, तो मतलब थीटा का वैल्यू 120 डिग्री, ठीक है। सो 120 डिग्री पे फ्लो करना पड़ेगा, स्विम करना पड़ेगा, ओके। देख लो, नाउ लेट्स कम टू कैलकुलस बेस्ड प्रॉब्लम्स इन काइनेमैटिक्स। तो जब एक्सेलरेशन कुछ वेरिएबल होता है, देन यू वुड हैव टू यूज द बेसिक इक्वेशंस, व्हिच इज, अगर 1D की बात करूँ, पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है, तो वेलोसिटी इज dx/dt, this suppose it's traveling along the x axis, so rate of change of x coordinate will be the velocity of the particle, acceleration would be dv/dt, the rate of change of velocity। I can also write this as, अगर मैं dx से मल्टीप्लाई करूँ ऊपर नीचे, what is dx/dt? v, तो I can also write it as v dv/dx, ठीक है। सो एक्सेलरेशन, ये एक इक्वेशन हो गया ना, एक्सेलरेशन, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो ये जो तीन इक्वेशन है, दीज आर वेरी यूजफुल इन ऑर्डर टू कैलकुलेट वेदर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अगर तुमको डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया, यू कैन कैलकुलेट वेलोसिटी, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया, यू कैन कैलकुलेट एक्सेलरेशन। बट अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट दिया, देन यू कैन यूज दिस इक्वेशन डायरेक्टली टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन, ठीक है। और 3D में ऑल यू हैव टू डू, ये सारे तीनों इक्वेशन you just have to write it in individual components। मतलब 3D में velocity का x component would be dx/dt, acceleration का x component would be dvx/dt, or I can also write this as basically everything x component, जो 1D था, similarly y component would be dy/dt, acceleration का y component would be dvy/dt, or I can also write it equal to vy dvy/dy, यहाँ पे y is the y coordinate, and similarly for z, ठीक है। So let's take a look at किस तरीके से प्रॉब्लम्स आते हैं। Let's do a question that came in JEE 2024। तो एक 1D मोशन बोला गया था, एंड पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय दिस, -3t³ + 18t² + 16t, t is टाइम इन सेकंड्स एंड x इज गिवन इन मीटर्स, तो सब SI यूनिट्स में है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन द एक्सेलरेशन बिकम 0। तो सबसे पहले व्हेन डज द एक्सेलरेशन बिकम 0 वो निकालना पड़ेगा। तो वेलोसिटी निकालते पहले dx/dt करके, फिर एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, t³ का डेरिवेटिव 3t², सो -9t² प्लस t² का डेरिवेटिव 2t, तो 36t प्लस 16, ये मेरा वेलोसिटी आ गया। अब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, इसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे, तो ये बन जाएगा -18t प्लस 36 शुड बी 0, मतलब t का वैल्यू 2 सेकेंड्स आ जाएगा। अब 2 सेकेंड्स मुझे वेलोसिटी चाहिए, तो 2 सेकेंड यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। सो वेलोसिटी एट t = 2 वुड बी सब्स्टिट्यूट कर दो, -9 × 4 प्लस 36 × 2 प्लस 16, मतलब ये बन जाएगा 36 प्लस -36 + 72, 36 + 16 इज 52 मीटर/सेकेंड, दैट इज योर आंसर। ऑलराइट, तो कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बाकी तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देख लो, अब ऐसा एक सवाल करते हैं जो JEE 2024 में आया था, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू डू इन देयर एग्जाम। तो देखो क्या दिया, 1D मोशन है, पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, x² = 1 + t², और पूछा गया फाइंड द एक्सेलरेशन, बोला गया एक्सेलरेशन एट टाइम t इज x⁻⁻n, फाइंड n। सो वेरी केयरफुली इस सवाल को देखना, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ x बोला गया है। अल्टीमेटली आई वांट एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ x, नॉट इन टर्म्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो किस तरीके से अपन करेंगे, सबसे पहले तो एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ x के लिए कौन सा इक्वेशन है मेरे पास, आई हैव दिस इक्वेशन। सो इफ आई कैन गेट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ x, आई कैन जस्ट यूज दिस इक्वेशन टू गेट एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ x, करेक्ट। तो कैसे करेंगे अपन, एक तो तरीका है कि x को लिखो √1 + t², उसको डिफरेंशिएट करो, तो तुमको टाइम के टर्म्स में वेलोसिटी मिलेगा, फिर टाइम को वापस x के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करो। बट लेट मी जस्ट शो यू अ नाइस लिटिल ट्रिक टू जस्ट सेव अ कपल ऑफ मिनट्स। मैं क्या करूँगा, मुझे वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ x चाहिए, राइट। सो
ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर, कैन आई राइट टी इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1? मैं क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज व्हाट आई विल डू इज आई विल कैलकुलेट डी टी बाई डी एक्स एंड देन उसका रेसिप्रोकल ले लूंगा, बिकॉज वेलोसिटी इज व्हाट? वेलोसिटी इज नथिंग बट डी एक्स बाई डी टी. What this will allow me to do is I will get this in terms of x. तो उसका रेसिप्रोकल लेके मेरे पास dx by dt आ जाएगा in terms of x, which is what I want. ठीक है? Alright, so let's do that. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x square minus 1 raised to half. चेन रूल लगाएंगे तो half into x square minus 1 raised to minus half multiplied by चेन रूल अंदर जाके 2x. Right? तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 कट के x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू हाफ. करेक्ट? तो वेलोसिटी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स. लेट मी जस्ट राइट इट दिस वे. ठीक है, मैंने एक्स को अंदर ले लिया. अब मुझे क्या चाहिए? अब हो गया मेरा काम. ऑल आई हैव टू डू इज सब्स्टिट्यूट इट हियर. सो एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी वेलोसिटी व्हिच इज रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इनटू डीवी बाय डीएक्स, इसका डेरिवेटिव. Let me just write this as, ऐसे लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट को रेज टू हाफ एंड 1 ओवर एक्स स्क्वायर को एक्स रेज टू माइनस 2. अब डिफरेंशिएशन बहुत सिंपल हो जाएगा. चेन रूल हाफ इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस 2 रेज टू माइनस हाफ इंटू अंदर जाओ तो बन जाएगा 2 इंटू एक्स रेज टू माइनस 3 एक्स रेज टू माइनस 2 का डेरिवेटिव. राइट? तो देखो ये 2 कट गया. व्हाट इज दिस? कैन यू सी व्हाट इज दिस? दिस इज 1 minus 1 by x square raised to half and this is 1 minus 1 by x square raised to minus half. वो तो कट गया, 2 कट गया, बचा acceleration is equal to x raised to minus 3 and therefore n is equal to 3. Alright, so this was a very good question. You can see it was not, I would say it was one of the more lengthier questions that come in JEE mains and most of the students were not able to do this. बट ये जो क्विक ट्रिक है बाय राइटिंग टी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड देन डी टी बाई डी एक्स, उसका फिर रेसिप्रोकल ले लो. दैट मे सेव अ मिनट और 2. ओके, समझ लो. फिर आगे बढ़ते हैं, देख लो. लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2022 नाउ इन 3 dimensions. तो मेरे पास दिया गया पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज 3t x कैप प्लस 5t क्यूब y कैप प्लस 7z कैप. तो ये x कैप y कैप z कैप मतलब i कैप j कैप k कैप. पूछा फाइंड द एक्सेलरेशन वेक्टर एट t इक्वल टू 1 सेकंड. तो ऑप्शंस में एक्सेलरेशन वेक्टर के लिए ऑप्शंस थे इन टर्म्स ऑफ x कैप y कैप z कैप. ओके, तो क्या करेंगे अपन? जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज 3t, तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना हो जाएगा? dx by dt, वो कितना हो जाएगा? 3. कांस्टेंट है, सो एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट 0. z कोऑर्डिनेट 7 है. ये जो पोजीशन वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट्स है, पोजीशन वेक्टर के जो कंपोनेंट्स है रादर, दे आर द कोऑर्डिनेट्स. दिस इज द पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर मतलब क्या? उसका जैसे कि अगर मैं 2 डायमेंशन में बनाऊं, दिस इज माय पोजीशन वेक्टर, तो उसका x कंपोनेंट इज द x कोऑर्डिनेट, y कंपोनेंट इज द y कोऑर्डिनेट. पोजीशन वेक्टर इज पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन टू द पार्टिकल का पोजीशन. ठीक है? सो दिस इज माय x कोऑर्डिनेट, दिस इज माय y कोऑर्डिनेट, दिस इज माय z कोऑर्डिनेट. तो x कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या बन जाता है? कांस्टेंट. तो उसका एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट 0. z कांस्टेंट है तो वेलोसिटी का z कंपोनेंट इज 0, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन का z कंपोनेंट 0. तो बचेगा बस y. तो y कोऑर्डिनेट क्या है? 5t क्यूब. तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव 15t स्क्वायर एंड देयरफॉर एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट कितना हो जाएगा? अगेन इसका डेरिवेटिव 30t. सो माय एक्सेलरेशन वेक्टर वुड बी t इक्वल टू 1 पे 30. t इक्वल टू 1 अपने को लास्ट में सब्स्टिट्यूट करना है आफ्टर डिफरेंशिएटिंग. तो 30 y कैप. दिस वाज योर आंसर. ओके, देख लो. Let's look at the nice question that came in JEE 2020 that combined calculus and relative motion दोनों को combine करके एक सवाल बनाया गया था. So let's take a look. A particle moves along the x-axis जिसका x coordinate is given by this equation in terms of time. तो particle एक x-axis के along move कर रहा है and x coordinate in terms of time वो ऐसा दिया गया. Another particle is moves along the y-axis. अब उसका y coordinate दिया हुआ है in terms of time. Find the relative speed between them at t equal to 1 second. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? I will first have to find the individual speeds, right? So particle 1 के लिए x कोऑर्डिनेट कितना दिया? 10 plus 8t minus 3t square. तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 10 का डेरिवेटिव 0, 8t का डेरिवेटिव 8 minus 6t. So at t equal to 1 this will become 2.
राइट. सो पार्टिकल 1 का वेलोसिटी इज ओनली अलोंग द एक्स एक्सिस, सो आई कैन राइट इट एज 2i कैप. करेक्ट. t = 1 मैंने सब्स्टिट्यूट किया. रिमेंबर ये जो टाइम किसी इंस्टेंट पे पूछा जाता है स्पीड वगैरह, तो यू हैव टू फर्स्ट डिफरेंशिएट देन पुट द टाइम. नाउ पार्टिकल 2, पार्टिकल 2 का जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या दिया गया, 5 - 8t³. तो इसका वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव विच विल बिकम -24t. सॉरी यहाँ पर एक स्क्वायर है, 24t², राइट. अब t = 1 पे दिस विल बिकम -24. सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 विल बिकम -24 j कैप. सो रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 वुड बी 2i कैप माइनस ऑफ -24 j कैप, मतलब 2i कैप प्लस 24 j कैप. अब मुझे क्या चाहिए, स्पीड, तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड. सो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बिकम 2² मतलब 4 प्लस 24² मतलब 576. ठीक है. सो दैट विल बी योर आंसर. देखो अब कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है जहां पर यू आर आस्क्ड द इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी, ठीक है, और इक्वेशन ऑफ द पाथ. तो देखो ऐसा एक क्वेश्चन JEE 2019 में आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन इन टर्म्स ऑफ x एंड y कोऑर्डिनेट्स. k is a constant times yi cap plus xj cap. y is the y coordinate, x is the x coordinate of the particle. k is some constant. Find the equation of the path. और ये सारे ऑप्शंस दिए गए थे. ठीक है. सो इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से करने का एक स्टैंडर्ड मेथड है. सो आई कैन राइट वेलोसिटी का x कंपोनेंट इज dx by dt and I can write velocity का y component as dy by dt. Correct. So if I divide these two equations, remember equation of trajectory में we do not need time, so I want to eliminate time. कैसे करूँगा, divide करो तो dt कट जाएगा, तो 2 divided by 1 will give me dy by dx should be equal to vy by vx. अब vy का वैल्यू कितना दिया, y component मतलब kx, and vx का वैल्यू कितना दिया, ky. So dy by dx is x by y. एंड अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करूंगा. इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे उसी फॉर्म में है यहाँ पर. तो आई विल गेट y² by 2 इज इक्वल टू x² by 2 प्लस सम कांस्टेंट. तो 2 तो मैं हटा के मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट में डाल देता हूँ, तो मेरा इक्वेशन बन जाएगा ये. ठीक है. So this is how, this is a very nice question. Again, most of the students in JEE 2019 were not able to solve this question because मतलब अगर ये इस तरीके से देखा नहीं गया पहले तो फिर बहुत difficult है to strike in the exam. All right, but now if you get this kind of a question, you should be able to do it. देखो, let's talk about graphs. Graphs पे काफी frequently questions पूछे जाते हैं kinematics में. So सबसे पहले displacement versus time का जो ग्राफ है, या let me take one D motion की बात कर रहा हूँ. अगर x एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है तो x कोऑर्डिनेट है डिस्प्लेसमेंट. तो जो भी ग्राफ है इसका, द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल बी dx by dt, दैट विल बी वेलोसिटी. सो द स्लोप गिव्स अस द वेलोसिटी. ठीक है. जितना ज़्यादा स्टीप है ग्राफ उतना ज़्यादा वेलोसिटी होगा, जितना फ्लैट है उतना कम वेलोसिटी होगा. ऑलराइट. देन यू हैव वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ. वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, स्लोप मतलब टेंजेंट. द स्लोप मतलब this basically tan theta, it's tan theta of the tangent. ठीक है. ये क्या देगा, dv by dt which is nothing but acceleration. So vt graph का slope is acceleration. Now vt graph is very useful because vt graph में जो area under the curve है that is also very useful. The area under the curve from let's say t1 to t2, the area under the curve क्या होता है, y coordinate into dx का इंटीग्रल. तो यहाँ पर y coordinate मतलब velocity into dt का इंटीग्रल from t1 to t2. But what is v dt? dv is equal to, sorry, dx is equal to v dt. v is dx by dt. This is nothing but integral dx. तो ये बन जाएगा the displacement from t1 to t2. तो t1 t2 टाइम इंटरवल में जितना डिस्प्लेसमेंट करता है पार्टिकल, 1D मोशन की बात कर रहा हूँ, दैट इज माई एरिया. ऑलराइट. एंड सिमिलरली एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में एरिया इज इंपॉर्टेंट. नाउ यू कैन इमेजिन एरिया इज इंटीग्रल ए डी टी मतलब dv. dv by dt is a, right? So a dt is dv. So this will be integral dv मतलब change in velocity मतलब final minus initial velocity.
ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम दिस टाइम इंटरवल टू दिस टाइम इंटरवल इज गोइंग टू बी द फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ओके, नाउ एक चीज तो तुमको अपने को पता होना चाहिए कि ये जो वीटी ग्राफ में है, सपोज कुछ ऐसा कर्व है, ऐसा कुछ कर्व है, तो सपोज दे आस्क यू द टाइम इंटरवल फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम हियर टू हियर दे आस्क यू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर सपोज इसका एरिया A1 है और इसका एरिया A2 है, टेक्निकली मेरे पास यहाँ पे इंटीग्रल है, राइट? सो व्हेन आई राइट A1 एंड A2 मुझे वो साइन के साथ लिखना पड़ेगा इंटीग्रल में। सो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस एग्जांपल में, A2 इज द ज्योमेट्रिकल एरिया, A1 इज द ज्योमेट्रिकल एरिया। मतलब जब इंटीग्रल करूंगा मैं यहाँ से यहाँ तो वो नेगेटिव आएगा बिकॉज V नेगेटिव है ना यहाँ पर। सो माय डिस्प्लेसमेंट वुड बी A1 माइनस A2, करेक्ट? इंटीग्रल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट विल बी पॉजिटिव A1, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट विल बी माइनस A2, ठीक है? बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बिकॉज डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ कवर्ड, दैट विल सिंपली बी A1 प्लस A2। ऑलराइट, ओके, तो ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना है, देख लो। Let's look at a question that came in JEE 2023। तो बोला गया कि पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। वेलोसिटी पहले 8 मीटर पर सेकंड है, फिर -4, फिर 4, इस तरीके से, ठीक है? फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस इन 10 सेकंड्स। तो पूरे 10 सेकंड्स की जर्नी में ये टाइम है, कितना डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। सो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एरिया विद द साइन, तो ये एरिया कितना हो गया 8 इंटू 2 16, ये एरिया कितना हो गया 4 इंटू 2 -8 बिकॉज वो वेलोसिटी नेगेटिव है, फिर दिस इज 4 इंटू 4 प्लस 16 एंड दिस इज 4 इंटू 2 बट विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है? ऑलराइट, तो ये बन जाएगा 16 मीटर। और डिस्टेंस बस अपने को सबका एरिया, ज्योमेट्रिकल जो मैग्नीट्यूड एरियाज का सब अपने को ऐड करना है। ऑलराइट, तो this will become 16 plus 8 plus 16 plus 8, तो ये 48 मीटर्स। तो रेशियो कितना हो जाएगा 1/3। ऑलराइट, देख लो। लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन फ्रॉम JEE 2020 ग्राफ्स में कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ वन डायमेंशनल मोशन के लिए इस तरीके से दिया गया है। दिस इज अ स्लाइटली ट्रिकी क्वेश्चन। वैसे डिस्टेंस पूछा गया है, मतलब मुझे पता है एरिया निकालना है मुझे, बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है बिकॉज ये जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 4.3333, ठीक है? तो अपने को थोड़ा सा केयरफुली करना है। अब जब मेंस के सवाल में 4.333 सेकंड्स दिया है तो वी हैव टू अज्यूम इट्स द फ्रैक्शन, इट्स द प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब उन्होंने आगे डिजिट्स 333 नहीं लिखा है बट वी हैव टू इट इज अंडरस्टूड, ठीक है? तो मतलब दिस शुड बी टेकन एज 4 प्लस 1/3, मतलब 13/3। ऑलराइट, ओके, सो अब ये होने के बाद देन द कैलकुलेशन इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जस्ट कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है, अपने को डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सो कुछ नहीं, वी विल जस्ट कैलकुलेट द एरिया। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, या तो ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल प्लस ट्रायंगल कर सकते हो, या फिर यू कैन ऑल्सो यूज द ट्रेपेजियम वाला फॉर्मूला। सो द टोटल डिस्टेंस वुड बी, ट्रेपेजियम का क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, तो 1 प्लस हाउ मच इज दिस 13/3 into the height which is 4, ठीक है? हाफ इंटू द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, इसका लेंथ 1 है, इसका ये 13/3 है, प्लस द सॉरी मल्टीप्लाइड बाय द हाइट, प्लस अब इस ट्रायंगल का कितना हो जाएगा, ये लेंथ कितना है 6 माइनस 13/3, राइट? सो वो बन जाएगा 5/3। सो हाफ इंटू 5/3 बेस इंटू हाइट इज 2। ओके, बस अभी कैलकुलेशन अपने को करना है। सो देखो ये क्या बन जाएगा, हाफ ये 2 कट गया, ये कट गया, एंड दिस विल बिकम 16/3, मतलब वो 32/3 हो जाएगा, प्लस 5/3, सो 37/3 मीटर्स। ओके, देख लो। कभी कभार ग्राफ में वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ भी पूछा जा सकता है। सो फॉर एग्जांपल पार्टिकल थ्रोन अप विद सम स्पीड u, ठीक है, goes up and comes back down। तो इसका मुझे वेलोसिटी वर्सेस द डिस्प्लेसमेंट प्लॉट करना है। लेट मी टेक अपवर्ड एज पॉजिटिव,
ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, अगर अपवर्ड पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन माइनस जी है, सो माइनस 2g s, राइट? नाउ कैन यू सी दैट s वर्सेस v, इफ आई प्लॉट s वर्सेस v, it is a quadratic, right? Because s is equal to I can write it as u square minus v square by 2g, correct? So s in terms of v is a quadratic. और किस तरीके से क्वाड्रेटिक है वो, s वर्सेस v, v स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, मतलब इस तरीके से क्वाड्रेटिक होगा, पैराबोला ओपन माउथ डाउनवर्ड्स और कॉन्केव डाउनवर्ड्स होगा, राइट? बिकॉज v स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। ओके, तो एग्जैक्टली अपन कैसे प्लॉट करेंगे इसको? when s is equal to u, when s is equal to 0, v equal to plus minus u, right? So that means the parabola will be something like this. This is u, this is minus u, ठीक है? एंड इस केस में हम लोग एरो भी बनाते हैं, तो एरो का मतलब क्या है कि टाइम, इट डिनोट्स टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड्स पॉजिटिव u है एंड फाइनली इट विल कम बैक विद नेगेटिव u, सो द एरो विल बी दिस वे, पॉजिटिव u से नेगेटिव u। नाउ आई वांट टू प्लॉट v वर्सेस s, अभी s वर्सेस v कर दिया, तो बस s अभी x एक्सिस पे हो गया, v अभी y एक्सिस पे हो गया, तो जो पैराबोला वाज कटिंग द s एक्सिस दिस वे, अब वो पैराबोला ऐसे हो जाएगा, राइट? सो इट इज गोइंग फ्रॉम प्लस u टू माइनस u, इस तरीके से, ऑलराइट? सो दिस इज अ पैराबोला, ओके? एंड ये जो हाइट होगा दैट विल बी द मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा, u स्क्वायर बाय 2g, करेक्ट? व्हेन वेलोसिटी इज 0, s इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g, ओके? तो the graph will be a parabola from, and the arrow denotes the time. Okay, देख लो. That's it for today. That's the end of kinematics. I hope तुम्हें मजा आया lecture. Let me know in the comment section, and please do keep sharing these videos with your friends. I know it's a competitive exam, and I know most of you have the mindset कि तुम share करोगे तो तुम्हारा competition बढ़ जाएगा, which is true. I don't disagree. But जितना ज़्यादा views आएंगे इन सारे videos को, उतना ज़्यादा मुझे फीडबैक मिलेगा कि yes, people are indeed watching and my videos are actually useful to those who are watching. So please keep sharing it for your own sake. If the views drop, then I may think कि people are not interested, so I may stop the one-shot series. So make sure you keep sharing these videos, and I will see you next time for Newton's laws. Keep watching my lectures, keep working hard, and I will see you at the top.